Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we are going to discuss the megasporogenesis, very important topic just after the male reproductive system. This is all about matter of class 12, chapter 2, the megasporogenesis. So back to the online class and learn it about thoroughly and properly. Female reproductive system, pre-fertilization event, in female, pre-fertilization events in female reproductive system of flowering plants. Listen, pre-fertilization events in female reproductive system of flowering plants. This should be your heading. Pre-fertilization events in female reproductive system of flowering plants. Keep in mind. The first one is gametogenesis. Pre-fertilization events in male reproductive system was similarly the gametogenesis and same things, that is gametogenesis. So this heading will be or gametogenesis in female reproductive system of flowering plants. RSFP means female reproductive system of flowering plants. This should be your homework. This should be your heading, not homework. If you have write your heading, then raise your hand. I will detect whatever you have mentioned in your copy. Very good. Only 2, 4. Very good. Very good. So gametogenesis in female reproductive system is called. Tell me the gametogenesis. Gametogenesis in female reproductive system. Write your answer. Male reproductive system gametogenesis was microsporogenesis. In female reproductive system, very good Ruchi Tripathi, very good Darshita Yadav, megasporogenesis, Preeti Maurya, well done, well done. So that is called as the megasporogenesis. Megasporogenesis. Listen carefully. I have here mentioned the point 1 megasporogenesis. While in plants there was only one, that is the microsporogenesis. After microsporogenesis, no heading regarding the gametogenesis. But keep in mind, in female reproductive system, gametogenesis consists two important parts: the megasporogenesis and megagametogenesis. So you must have to mention in your copy, it consists two parts, megasporogenesis and the second part megagametogenesis. Listen, megasporogenesis and megagametogenesis. Listen carefully. There are two important parts, megasporogenesis and megagametogenesis. If you have mentioned this one in your copy, then raise your hand. Very good. Keep in mind, listen carefully, plants की तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है, थोड़ा सा प्लांट से डिफरेंट होता है. आदित्य गुप्ता हैंड डाउन कर लो. प्लांट्स की तरह से इसमें गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है. होता क्या है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे. एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, MMC. लिसन, यहां फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में MMC का मतलब मेगास्पोर मदर सेल. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही चीज क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल. सो टेल मी द मेगास्पोर मदर सेल विल बी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड. रुचि त्रिपाठी, वेरी गुड.
कनिष्का मध्यसिया, गुड गुड गुड, चलो सब डिप्लॉयड होता है, ठीक है। लिसन, अब ये बताओ इसमें मियोसिस की कैपेसिटी होगी कि माइटोसिस ही करेगा? बोथ, वेरी गुड, मियोसिस। लिसन, सब लोग ध्यान सुनेंगे। तो ये डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल बाय मीन्स ऑफ मियोसिस form 4 haploid स्पेशल सेल। अब ये हैप्लॉयड स्पेशल सेल जो मेगास्पोर मदर सेल से बन रहे हैं, ये नंबर में कितने हैं? 4। कितने नंबर में? 4। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? कौन बताएगा? ये मेगास्पोर मदर सेल है, इससे ये क्या बन रहा है? हैप्लॉयड स्पेशल सेल। वेरी गुड रुचि त्रिपाठी। और कोई बताएगा दूसरा? रुचि त्रिपाठी के अलावा भी ये मेगास्पोर मदर सेल है, इससे 4 हैप्लॉयड स्पेशल सेल बन रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड अनामिका, कनिष्का, अदिति, वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे? अदिति का सही नहीं है, माइक्रोस्पोर बोल रहे, नहीं, इसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। क्लियर है ना सबको? तो ये मेगास्पोर मदर सेल है। किसकी मदर है? मेगास्पोर की। इसके बच्चों को क्या बोलेंगे? मेगास्पोर, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस हम जो दिखाई दे रहा है अभी, एक बार तो मियोसिस होता नहीं, 2 बार मियोसिस होता, पता है, लेकिन दोनों के फाइनल रिजल्ट में 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर बन गए। दिस इवेंट इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। So in your examination, there may be a question arise, what are the products of megasporogenesis? तो आंसर मेगास्पोर। आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्पोर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्पोर। क्लियर हो गया बातें? मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बन गए, ठीक है। ये इवेंट्स होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। बातें समझ में आ गई सबको? अभी तो मैं सीधे सीधे समझा रहा हूं, अभी प्रोसेस समझाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी यही क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़े आगे। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। अब आगे एक इवेंट्स और बच गया है, मेगा गैमीटोजेनेसिस क्या होता है वही जानना है। लिसन, होता क्या है? हाँ जी, लिसन केयरफुली। अब आगे बताते हैं कि मेगा गैमीटोजेनेसिस क्या होता है। लिसन, एक्चुअल में ये 4 जो दिख रहा है ना, 4, ये 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर में से 3 जो है डीजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 डीजेनरेट, ठीक है। एक जो है वही बड़ा होकर के क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अच्छा, मैं बार बार एक चीज बताता रहता हूं कि सैक मीन्स क्या होता है। कोई भी टाइप करके बताओ, सैक मीन्स क्या होता है? सैक टाइप करके बताओ, देखिए कितने लोगों को पता है, दिमाग में है अभी। एम्ब्रियो सैक, पाउच, वेरी गुड। तो ये क्लियर है कि ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। यानी क्लियर है कि वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है ना। एम्ब्रियो डेवलप होगा। बातें क्लियर हो गई? इसी एम्ब्रियो सैक को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीटोफाइट। और करके इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फीमेल गैमीटोफाइट। इसी को हम लोग फीमेल गैमीटोफाइट या मेगा गैमीटोफाइट बोलते हैं। ये बड़ा होकर के बनाता है। सो दिस इवेंट इज नोन एज द मेगा गैमीटोजेनेसिस। मेगा गैमीटोजेनेसिस क्लियर हो गया? फिर से एक बार समझ लो, 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर बने, 3 उसमें से डीजेनरेट हो गया, 3 डीजेनरेट हो गया। क्लियर है? जब 3 डीजेनरेट हो जाता है तो एक जो बचता है मेगास्पोर, वही बड़ा होकर के क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है। अच्छा ये बताओ हमको सब लोग, ये एम्ब्रियो सैक हैप्लॉयड होता है कि डिप्लॉयड होता है? कोई भी बताए, एम्ब्रियो सैक हैप्लॉयड होगा कि डिप्लॉयड होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हैप्लॉयड होगा, क्योंकि वो हैप्लॉयड से ही ग्रो करके बन रहा है, ठीक है। लिसन, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये 3 डीजेनरेट हो गया, बचा कितना? 1।
अगर 4 मेगास्पोर से एक गैमीटोफाइट बन रहा है, एक फंक्शनल मेगास्पोर बच रहा है और वही डेवलप हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो सब लोग कॉपी में लिख लो, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? हो गया? व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? वेरी गुड। क्या होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ऑफ सिंगल मेगास्पोर, डेवलपमेंट ऑफ सिंगल functional megaspore into embryo sac from 4 haploid megaspore, from 4 haploid megaspore। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, और ये मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। स्पोरिक मीन्स मेगास्पोर की मैं बात कर रहा हूं। डेवलपमेंट ऑफ सिंगल मेगास्पोर फ्रॉम 4 मेगास्पोर, डेवलपमेंट ऑफ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इनटू एम्ब्रियो सैक फ्रॉम 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर, फ्रॉम 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर यही 2 डिजनरेट होता, लिसन, इसमें से 2 ही डिजनरेट होता, 2 इसमें से अगर डेवलप होते, एम्ब्रियो सैक बनाते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोस्पोरिक डेवलपमेंट और डाइस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये डाइस्पोरिक भी हो सकता है, डाइस्पोरिक। ठीक है, कब होगा? जब 2 डिजनरेट होगा और 2 मैच्योर होंगे। अभी तो 3 मैंने डिजनरेट किया, एक ही मैच्योर हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक। समझ में आई बातें? तो डाइस्पोरिक का भी आप लोग डिफिनीशन लिख लेना कॉपी में, लेकिन ये रेयर होता है। ठीक है, मोस्ट क्या होता है? मोस्ट होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर हो गया बातें? हैंड रेज करके बताओ सब लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे लिखो कॉपी में प्रोसेस ऑफ। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़, तो एक चीज ये जान लो, जैसे यहां इसमें प्रोडक्ट लिखा है मेगास्पोर, किसका? मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोडक्ट क्या होगा? मेगास्पोर। वैसे ही मेगा गैमीटोजेनेसिस का प्रोडक्ट क्या होगा? एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमीटोफाइट और मेगा गैमीटोफाइट। हो जाए तो बताना। वेरी गुड। अब हम लोग दोनों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे डिटेल, और मेगा गैमीटोजेनेसिस डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर है ना? चलो, now we are going to discuss, listen carefully, now we are going to discuss the process of megasporogenesis. There are 2 main events of pre-fertilization or gametogenesis in female reproductive system, the megasporogenesis and megagametogenesis. So your point will be the process of megasporogenesis. Listen, your point will be the process of megasporogenesis. So put heading megasporogenesis. Megasporogenesis. Put heading regarding the megasporogenesis. हो गया हेडिंग? मेगास्पोरोजेनेसिस। वेरी गुड। राइट डाउन डिफिनीशन। डेवलपमेंट ऑफ 4 हैप्लॉयड, डेवलपमेंट ऑफ 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर from single diploid megaspore mother cell, development of 4 haploid
megaspores from single diploid megaspore mother cell through continuous reductional division. Continuous reductional division through continuous reductional division. बातें क्लियर हो गई? डेवलपमेंट ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम सिंगल डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल थ्रू कॉन्टिन्यूअस रिडक्शनल डिवीजन. अब आगे लिख लेना कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है. अच्छा ये बताओ ये रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है? टाइप करके बताओ तो जल्दी. वेरी गुड अनामिका. और कोई बाकी लोग? वेरी गुड. नहीं